my dear friends and my dear student. I hope you are doing fine and well. Today I have come with another video from verb. आज मैं आपके पास दूसरा वीडियो लेके आई हूँ verb से. In my previous video I have tell you about noun and pronoun. मैंने आपको पहले वाले वीडियो में noun and pronoun के बारे में बताया था. I hope you like my video. And if you want to see more interesting video, then go to our channel, subscribe to our channel, and hit the like button. So whenever we upload it, you get the notification. So I will be teaching you about verb. So what is verb? Verb is an action word or a doing word. Okay, verb क्या है? Action word. Always verb हमारे बारे में क्या describe करता है कि हम लोग कौन सा action कर रहे हैं. Just like I'm speaking, right? It's my action. मैं बोल रही हूँ ना, it's my action. I will be writing. That's my action. You are watching my video, so that's your action. What you're doing? That's your action. Your mother cooks, right? That's an action. So today I will be teaching you about verb. So I will explain you. Truly, I will explain it. I will make it as simple for you, so that you can understand easily. So let's start the video. Verb. Sorry, verb. So what is verb? It might be helpful for you, so you can take out your copy and your pencil and you can write. So what is verb? Words which show action are verb. All doing words are called verb. So all doing words are called verb. जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? Verb. So for example, I will take just like for example, I will take Ram sleeps. Ram sleep. Ram क्या कर रहा है? सो रहा है. Second, birds fly. Fly यानी कि उड़ रहे. So उड़ना वो क्या है? हमारा verb है. So for number 3, fish swim. Swim करना क्या है? Verb है ना? It's a verb or a doing word. Swim यानी कि क्या बोलते हैं? पौड़ी खेलना, तैरना, उसको क्या बोलते हैं? Swim. तो वो भी क्या कर रहे हैं? Action word. It's a verb. वो भी हम कर रहे हैं. So for number 3, सीता sing. सीता क्या कर रही है? गाना गा रही है. So what is verb out there? इसमें verb क्या है? राम sleep. राम क्या कर रहा है? सो रहा है. Birds fly. Birds क्या कर रहे हैं? Fly कर रहे हैं, उड़ रहे हैं. Fish swim. Fish क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं. सीता sing. सीता क्या कर रही है? गाना गा रही है. So it is called verb or a doing word. जो भी आप काम कर रहे हो, it's a doing word. If you writing, it's a doing word. अगर आप लिख रहे हो तो that's a doing word. You're listening to me, you're watching my video, it's also doing word. क्योंकि आप देख रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो. Your mother may be cooking food. आपकी मम्मी खाना बना रही होगी. So that's a doing word, verb. And there are many more things, just like sun shine, right? sun क्या होता है? shine करता है. sun क्या कर रहा है? shine कर रहा है. उसका काम क्या है? shine करना, चमकना. so वो चमकना भी क्या है? doing, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है. सूरज क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है. moon shine, moon भी क्या करते हैं? shine करते हैं. वो अपना काम कर रहे हैं. so each and particular thing are doing their work, so it's called a verb or a doing word. so मैं आपको दूसरा ये बताना चाहती हूँ
इफ अ नाउन स्पीक अबाउट वन पर्सन और अ वन थिंग, नाउन मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था, व्हाट आर नाउन, नाउन आर नेमिंग वर्ड। सो हमने कैटेगरीज आ दिया, पर्सन प्लेस थिंग्स एंड एनिमल, ये चार है ना। सो इफ अ नाउन, ये पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल, इनमें से चार में किसी भी नाउन स्पीक अबाउट वन पर्सन और वन थिंग वन एनिमल, देन उसके पीछे क्या लगेंगे, एस। जैसे कि नाउन जस्ट लाइक एट द एंड ऑफ द वर्ड, हमारे जो नाउन होते हैं, अगर नाउन सिंगल है मतलब सिंगुलर है, अकेला है, तो उसके वर्ब के पीछे क्या लगते हैं, एस लगते हैं। हाउ, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था ना, फिश, फिश इज आवर नाउन, कौन सा वाला नाउन, एनिमल्स वाला नाउन। सो उसका वर्ब के पीछे क्या लगेगा, एस, द वर्ब एंड एस, तो एस डब्ल्यू आई एम एस, स्विम, यानी कि पीछे वर्ब में एस लगाना, क्योंकि जो नाउन सिंगुलर होते हैं उसमें, जैसे हमारे ये नाउन फिश नाउन सिंगुलर है, सो इसमें जो वर्ब लगा उसमें हमारा एंड में क्या लगा है, एस। सो नाउ दिस if the noun speak more about if the noun speak more than one or of one thing or a place or animal or a person, तो हमारे पीछे में क्या नहीं लगते हैं, एस नहीं लगते हैं। वर्ब के पीछे क्या लगते हैं, एस लगते हैं। अगर इफ द नाउन इज सिंगुलर, इफ द नाउन इज ओनली वन पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल, तो हमारे वर्ब में क्या लगेंगे, पीछे एस लगेंगे। अगर हमारे नाउन इज मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल, देन द वर्ब विल बी, देन देयर इज नो एस बिहाइंड द वर्ब। जैसे कि बर्ड्स, बर्ड्स हमारे नाउन में क्या लग रहे हैं, एस, हमारे नाउन में एस लग रहे हैं ना, सो तो हमारे वर्ब में क्या लगेंगे, एस नहीं लगेंगे। बर्ड्स फ्लाई, जैसे फिश, फिश में यहाँ पे बस एक था, तो क्या हुआ, हमारे वर्ब में स्विम में एस लगा था। सो बर्ड्स ढेर सारे, तो इसमें क्या लगा है, बर्ड्स, फ्लाई लगा है। जैसे लाइक a group of girl is dancing or a dance, अगर group of girl is dancing, just like girls यानी कि ढेर सारी लड़कियां डांस, so the group of girl is dancing, so हमारा ये गर्ल क्या है, पर्सन वाले नाउन में आ रही है, पर्सन वाले नाउन में आ रही है, तो गर्ल क्या कर रही है, डांस कर रही है। सो हमारे वर्ड में एस नहीं लगते। इफ देयर इज वन गर्ल, देन हमारे पीछे वाले में एस लग सकते हैं। सपोज ये एस हमने यहाँ हटा दिया, तो ये हो सकता है। ओके, सो सीता वर्क्स, राम रन्स, ये सब क्या होते हैं, सीता, सीता इज द नेम ऑफ अ वन पर्सन, सीता एक लड़की का नाम है। सो सीता इज क्या कर रही है, वर्क, सीता वर्क्स, वर्क्स। ओके, so let me explain you the another verb। मैं आपको दूसरा वर्ब बताऊंगी जिसमें क्या लगता है, ing, क्या लगती है, ing। there is two type of verbs, मतलब वर्ब एक वर्ब में क्या होता है, एस लगते हैं। for if the noun is singular, if the noun is singular, जब वो इंडिकेट करता है बस वन पर्सन और थिंग को, लेकिन अगर नाउन ढेर सारी चीज को इंडिकेट करते हैं तो पीछे एस नहीं लगते हैं। सो द सेकेंड वर्ब इज आईएनजी, वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड आईएनजी। So our second verb is what? Verb using ing। हम क्या कर रहे हैं इसमें, वर्ब में ing यूज कर रहे हैं। Just like he is reading a book, reading a book, reading यानी कि जो लड़का किताब पढ़ रहा था, रीड कर रहा था, उसका जो मतलब उसका रीड करना क्या है, उसका एक्शन वर्ड है, उसका डूइंग वर्ड है। तो लड़का क्या कर रहा है, अब रीडिंग अ बुक, समवन इज सेइंग, क्योंकि कोई और बोल रहा है। He is
रीडिंग अ बुक। ये वाला वर्ड अगर दूसरे वाले में पढ़ रहे हैं, अगर आप पर्टिकुलर इंसान के नाम लेके करते हैं तो राम रीड्स, बस रीड्स होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ING। सो ही इज रीडिंग अ बुक, मदर इज कुकिंग अ फूड, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। जैसे हर एक वर्ड में डूइंग वर्ड में क्या लग रहा है, ING। द सन इज शाइनिंग, जहां मैंने बोला था सन क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, अब वहीं पे क्या हो रहा है, द सन इज शाइनिंग, ING। सो दूसरे वाले वर्ड में हम लोगों ने क्या यूज किया, ING। तो आगे वाले वर्ड में हम लोगों ने बस उसका एक्शन बताया था, यानी कि डूइंग वर्ड बताया था कि वो क्या कर रहा है। अब हमने इसको पूरा सेंटेंस में बताया कि वो कैसे कर रहा है। ही इज रीडिंग अ बुक, मदर इज कुकिंग अ फूड, द सन इज शाइनिंग, शी इज रनिंग, she is dancing, he is playing, dash are working, birds are flying। so हर एक वर्ड हमारे वर्ड्स में क्या लग रहे हैं, ING। so हमने इस दूसरे वाले वर्ड में ING का यूज किया है। so आगे वाले वर्ड में बस हमने पर्टिकुलर इंसान मतलब प्लेस पर्सन थिंग का नाम लेके हमने बस उसमें उसका एक्शन और डूइंग वर्ड बताया था। जैसे बोट सेल, बोट शेल, बोट सेल यानी कि बोट सेल। अगर ये हमारा नाउन है, बोट इज अ थिंग, थिंग वाला नाउन है, कौन सा, थिंग वाला। सो बोट्स, तो ढेर सारे बोट्स होंगे ना, तो बोट्स सेल यानी कि तैरना, जो बोट सेल करते हैं पानी में उसको बोलते हैं तैरना। सो बोट्स सेल, अगर इसको हम ING लगाएंगे क्या करेंगे, तो बोट्स आर सेलिंग, ING। द बोट्स आर सेलिंग। सी, यही वाला एक्शन वर्ड हमारा पहले क्या था, बोट सेल। अब ये क्या है, द बोट्स आर सेलिंग, सेलिंग। इसमें भी हमने ING का यूज किया है। सो व्हाट इज अ वर्ब, इट्स अ वेरी सिंपल वर्ब, इज अ डूइंग वर्ड और अ एक्शन वर्ड। जो भी आप कर रहे हो वो क्या है, वर्ब है। सी, आई एम स्पीकिंग, दैट्स माय वर्ब। So I was writing, that's not my verb। आप watch कर रहे हो, that's your verb। So हर एक जगह everything we do वहाँ पे हमारा verb use होता है, including with noun। Okay, so I have tell you if the noun is one, if the noun indicates only one person, thing, place or animal, तो हमारे verb के पीछे s लगेंगे। अगर noun singular है, if the noun speak only about one person, one place, one thing और one animal, तो हमारे वर्ब में क्या लगेंगे, एस लगेंगे। हाउ, सीता इज अ नाउन, पीछे वाले वर्ब में क्या लगेंगे, एस। वर्क्स, सीता वर्क्स, ठीक है। तो अगर हमारे नाउन इज मोर देन वन, एक से ज्यादा है, that could be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, many more। अगर एक से ज्यादा है, चिड़िया ढेर सारे होते हैं ना, birds। so birds fly। यहाँ पे सीता अकेली थी ना, हमारा नाम अकेला था, सिंगुलर था, तो हमारे वर्ड में क्या लगा, एस। क्या लगा है, एस। अगर हमारा नाउन इज नॉट सिंगुलर, प्लूरल, इट्स मोर देन वन थिंग, अगर हमारा नाउन सिंगुलर नहीं है, वन नहीं है, तो हमारे वर्ब में क्या लगेगा, एस नहीं लगता है, क्योंकि नाउन में ऑलरेडी एस है। सो हमारे वर्ब में एस नहीं लगते। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई थिंक it might be helpful for you, so you can write। it's very simple। मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से बताया कि what is a we show an action or a doing word। I hope you like my video। I hope you enjoy my video। If you want to watch more video like this, then subscribe to our channel, hit the like button। Thank you so much।